Satish. We are all going same direction, right? We are going. This is the back of the seminar hall. इधर यहाँ पे glasses Okay, I'm coming. that's right. So the whole As a very nice, gentle husband. Unlike me. And the female hostel was Kailash. Pankaj Sahai digital insurance. Hi, Joe. Vivek can be still. Yeah, okay, so Vivek is a very good. Yeah, Vivek is a good friend. Really good. Birmingham. Indian friend. लंदन में रहना ये अब वो कह रहा है 1 मिनट पीछे उंगली देखो भैया was having many difficult Yeah, we didn't anticipate it's not going to go there. Yeah. किसी साल नहीं होता, कभी नहीं होता. So Roger was a good friend. great guy. Yeah, very good now.
इलाहाबाद वाले में इलाहाबाद में बनारस खाना खा लिया ना अब ज़्यादा इधर नहीं 95 to 98 They do a lot of this in our driver after I got his son Just hold his hand and pull it here. मंडे कराऊंगा एक्चुअली आज में है ना वहाँ पर हमारा IIT का फंक्शन है। मेरे को तो ये नॉन मेडिकल भी है ना Go to the press. अलग अलग जगह पे जाते हैं तो फिर पूरा I think enough follow up running ahead of दांता में श्री राजीव बताओ क्या हम तो ये करेंगे ये हनुमान के है ना The kid keeps on growing. It's too late. ग्रेट कार्ड टेक्सटाइल वाले हाँ मैंने वो मैं मेरे घर आ जाते थे मैं कहा यहाँ बैठ जाऊँ ओके ये यूज़ कर लो पकड़ के बैठ गया I had some things to remember. हम में से आप लोगों में से कोई 25 साल बाद मिले पहली बार 43 साल लोग हैं। मैंने 72 में PhD किया था, मेरी भी गोल्डन जुबली हो गई है। वो काराकोरम हॉस्टल में जब वार्डन में बना, I had just returned from Kharagpur. My health was pretty down because of the dysentery which I had for 2 years there. I was lean and thin like this. Nobody would recognize me that I am the warden. I looked like one of the first year boys. ये कारा का एक्चुअली सर थोड़ा ट्रेडिशन रहा हुआ So, I took the precaution that I will always ask the caretaker, who was 6-footer, always with me. And he used to remind the students, Warden sir. And I being the warden for the first time, I was very enthusiastic that the warden job should be done very properly. So in the night I will move around, particularly the top floor. वो caretaker वो भी आपके साथ Knock, yes, yes. Knock, knock. अंदर से 3-4 गालियां आई। गाली मैं नहीं सुनाऊंगा। My caretaker said, Warden sir, silence. Move to next room. Some noise. खुला, दरवाजा थोड़ा सा खुला था, खुला। एक लड़का ऊपर
अलमारी के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसने कम्बल और रजाई ओढ़ रखी है। आई एम इन शिमला, आई एम इन शिमला, मैंने केयर टेकर बोला इसको उतारो, ये तो शिमला से उतारो। तो जैसे ही एक लड़के ने कुछ बोलने को मेरे को किया, मैंने बोला, उसने बोल दिया शांति हो। तो ऐसी एक इंसिडेंट वहाँ पर है। आमतौर में क्या होता है, जैसे आप लोग 30 बार पैच चिल्लाए, कोई 50 साल बाद मिले, दूर से उसने उसको देखा 50 साल बाद। समय तो थम गया ना, 50 साल तो गए अब, क्योंकि अब तो पैरेलल हो गए। तो उसने बोला आपको समझे? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, मेरी बीवी को नहीं पता। थम गया है किरदार। That was love story 1942. I said response of attendance. So I looked around and I said, raise your hand. Then at the back, somebody was lying there, sleeping. And I said, I didn't see you. After about 20 lectures, he got up. He said, I want to know that who is the instructor this time. अभी तो देख ले। इधर उधर उधर खड़ी हो जा। Physics, chemistry, maths, biology. So it's a 302 course. So 42 lectures we teach the basic biology. Like a research department. Okay guys, welcome back, and this is a master class on the subject of wellness. It has two legs to it. One is nutrition and the other one is spirituality. And the panelists that you see here, seated before you, are the experts, real practitioners who are going to give you all the gyan and tell you what you need to do to lead a long, healthy life. So, without much ado, this is a very hot topic for discussion these days, and it's being debated about in so many forums. And before we start, just one point that, look, most of you have been in audiences, have listened to speakers before, but here, this is one family, because all of us seated here have grown up with each other. So I can assure you that what you hear from this panel is what a family would really gain out of it. And therefore I sincerely, nutritionist or spiritualist anywhere else. So without much further ado, I'm Sanjay Sehgal, your moderator for the day, and I would like the panelists to introduce themselves. So I'll start from here. This is Vinita and Vinita Go. Hello, I'm
Vinita Ellen, wife of Arun Shekhar. I'm a merit ranker nutritionist from Mumbai University, and I have about 30 years of experience behind me, and I've been with leading diabetologist in Bombay, and also with Apollo Clinic for many years. I have also been into corporate talks and have been fortunate to have given corporate talks to Hayat Regency, Volkswagen, Mahindra Finance, to name a few. And currently, I've impacted more than 6,000-7,000 people, and hopefully they've benefited positive impact to remain healthy and reduce the burden of obesity and diseases like thyroid, PCOD, diabetes, and many others. Currently, I am running a diet clinic, Eat Your Way to Good Health, in Andheri East. Good afternoon, friends. I'm Geeta Sharma's wife. I'm a nutritionist. I've been practicing in a hospital in Delhi, Phoenix Hospital, for many years. After that, I set up my own clinic. It's called Good Health Program, and I address people from the age, I say, 0 to 100, because I deal with infertility cases where patients come to me before they get pregnant. Then I give diets to pregnant women, to lactating mothers, to weaning children who start their weaning process at the age of 6 months. I also have children who are fussy eaters, teenagers who want to gain height, who want to gain weight, who want to lose weight, and middle-aged people, elderly people, so it's 0 to 100. This is clinical nutrition that we handle. And it's very interesting, very satisfying when you have patients who come to you with multiple health concerns, and then, they walk out of your clinic after a 3-month program, where their reports improve remarkably, and then they've changed for life. So that is what I feel, that nutrition is something which is a lifestyle change, and I'm so fortunate to be able to bring about this change in people. Thank you. Thank you, Geeta. Thanks a lot. Thank you, Geeta. Thanks a lot. Okay, so there was a third member on the nutrition panelist. That was Nandu Doraiswamy. Unfortunately, his flight hasn't landed as yet. So, but I can assure you the two ladies here will do more than justice to this. Right, who did engineering, who led a corporate life, and then moved on to doing something that their inner calling really came through, and that's their passion in life. And today, they really hold forth in various subjects which deal with mental health, mental agility, and self-realization. So over to you, Mangala. नमस्ते अस्तु बहु प्रसन्नो हम भगवतो मिलित्वा। मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 1975 में हम छोटे सब मिले थे, और अब जो है अपने स्थानों पर पहुंचकर सब अच्छे प्रतिष्ठित हो गए हैं। हम ड्राइंग हॉल में कहाँ इस प्रकार से कंपटीशन में और ड्राइंग शीट्स व्यस्त होते थे, तो आज एक दूसरे वातावरण में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर निरंजन लाल मंगला, और यहाँ से जाने के बाद मैंने वेद का अध्ययन किया, विभिन्न व्याकरण, दर्शन, उपनिषद आदि का। साथ में जो वेद का विज्ञान है, जिस प्रकार से जो हमारी इंजीनियरिंग है और फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो वेद की वैशेषिक दर्शन है, समरांगण सूत्रधार है, और नृत्य और का भी अभ्यास किया। और उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से MS और PhD भी की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल से संबंधित एरोडायनेमिक्स। और वर्तमान में मैं जो प्राचीन हमारी विमान विद्या थी, उस पर हमारा कार्य हो रहा है कि किस प्रकार से वो फिर से पुनर्जीवित हो सके। और साथ में हमारा जो आत्मदर्शन है, उसके लिए तो प्रयास प्रतिदिन चलता ही है। तो इसी संक्षेप परिचय के साथ फिर आपके पास उपस्थित हूँ। धन्यवाद। दामोदर शर्मा।
Mr. Karakoram, discipline still. Actually, today I will speak on the Hanuman Chalisa. Learning, reading, writing, Urdu is my passion. This was developed when I was in IIT. Recently, I completed the first Urdu translation of Hanuman Chalisa, which has been published a few days ago. Mamta Sharma is my wife. She is in front of me. She is also a good singer. You will enjoy her voice also in the evening. Thank you, DP. Thank you. Okay, Manmohan. This is Manmohan Dhiman. I am a heartfulness trainer, which is part of meditation. Topics I will touch upon today will be, I call it, one is heartfulness, different aspects of it. Second will be, I call it C5, contentment, calmness, courage, compassion, and clarity. And everything and anything covered in this. In contentment, calmness, courage, compassion, and clarity. Second I would like to touch upon is SBK. That is Sahastra Dal Kamal. These are two topics. I am based in Himachal, Dharamshala. My wife did not come because my mother is around 97 in cold. Yeah, and she is very lively. We laugh a lot in the day together. I enjoy seeing the face, seeing smiling face on her. We joke a lot. So what I want to say is, I want so much to laugh with you. That you have so much of oxygen, maybe in few moments we talk about. That is enough for your day, daily. Something like that. So that's what I say. Dharamshala, Himachal based. Thank you, Manmohan. So, the way we're going to do this session is we're going to touch the topic of nutrition first, and then after we've done that, then we'll go across to the section on the spirituality. That's to ensure that we don't sort of confuse the issues. So this is going to go on for about half an hour, 35 minutes, followed by a Q&A for about 10 and 15 minutes. It becomes weaker with age. That is why you might be having acidity and bloating problem more often. And many people resort to common things like or whatever over-the-counter this thing. But there are certain things, if you improve your lifestyle, and there are certain things if you do, it goes a long way. Like simple thing is खाने के बाद सौंफ खाना. पहले it was very common कि खाना खत्म होता था and एक दो चम्मच रोस्टेड सौंफ खाने के बाद लंच और डिनर के बाद अक्सर ले लेते थे. And that really helped with the digestion and it prevented acidity and bloating. But now it's not so common. वो सौंफ मिलती भी है तो वो sweetened version मिलती है, which is of not much help. And और यार मीठा सौंफ खाना भूल जाते हैं लोग. Second thing is aloe vera. Aloe vera again works very well. So if you take it as a shot, say about 1 tablespoon aloe vera with equal amount of water in the morning, first thing in the morning, it really prevents acidity. And third thing is methi. Methi seeds, if you soak 1 teaspoon methi seed in a cup of water and have it first thing in the morning, again it really works very well. Not only with acidity, bloating, flatulence, it is sort of anti-aging. It will also prevent your sugar from spiking and improve your triglycerides as well, which have a tendency to spike up in this age group especially. These are all traditional foods, Yes. or things which we did, in a manner of sweet grandmothers, and therefore, Right. it's coming back into being right now. So definitely it helps. Another thing is you should not eat
early, at least 2 to 3 hours before heading to bed. That also goes a long way in preventing gas and acidity, flatulence. And after eating, if you can just take 100 steps, don't go for a walk, not for a long walk, but just 100 steps. That also really helps in digestion. And there is one Ramban remedy which I will share with you today, which works like magic for so many of my clients. Whoever has said it has definitely worked its magic on them. And it's all found in the Indian kitchen. That is dhania, jeera, saunf, methi and ajwain. Take 2 tablespoons each of all these 5 things and make it into a powder, which will last you for about a week or 10 days. And then every night, just soak 1 teaspoon of this powder in 2 glasses of water. In the morning, just give it a boil and have it warm. And this will really take care of all your acidity and flatulence or gas sort of things, and you will feel so much relief. If you are having a chronic problem also, you will feel a lot of relief, and I have tried with many of my clients. Flatulence and gas issues, this definitely works. Lead an active and as healthy a life as possible down the years. You will still be fairly healthy if 80-20 rule if you follow in general. And I think that's a holistic. A few things which I would say. One is hydration. Who don't even have about 1 to 1.5 liters. Really keep you healthy. Second thing is 1 handful of nuts. So it can be 4 to 5 almonds or walnuts or Brazil nuts, anything. It's also important to have either 2 dates or 2 figs in a day. That will keep your stomach clear and prevent constipation. Third thing is at least 3 to 5 servings of vegetables and fruits in a day, because they are a storehouse of vitamins, minerals, and very important factor, fiber. If the fiber is less in the diet, again there's a tendency to have much more diseases and of course constipation. Absolutely. Great, Vinita, thanks. I think I'll come back to you again. You got one more point, yes? Yeah. And important thing is eat fresh, eat seasonal, and try and eat home cooked food as far as possible. Exercise can be 150 to 180 minutes in a week. Whichever of your choice, whether it's yoga, walking, or anything else which you desire. And keep a positive attitude and a good social circle, which will keep you happy in your golden years. We have still more to come from her. Geeta, we all have parents who are, fairly old and ourselves. We always nowadays caution them, like be aware of trips and falls, and be very careful when you slip up, and especially in the bathroom. And it has led to many kinds of issues on fractures, etc. So, is there something that you've seen in your interaction with people about bone health, bone strength? Is that something that comes across as a weak area? Very much so. In fact, I feel that our parents are lucky even if they have a fall, they are not going to fracture their bones. Yeah. Because they've eaten so healthy in their youth that they have strong bones. But unfortunately, even we are more lucky than our own parents, our own children. Because these children these days are not eating a very healthy diet, nor is their lifestyle healthy. We used to play a lot, which they don't play, they spend a lot of time on the computer. Secondly, I'm shocked at pediatricians advising children not to have milk. Because they say that milk is, has hormones. Sorry, Geeta, can you move the mic closer to your mouth? Now is it better? Yeah, far better. The closer the better. Okay. So, there are a lot of children who've been advised by pediatricians not to drink milk, because they say milk has hormones in them, so you shouldn't be having milk. And I have children as young as 7 years old come to me, and they're not gaining height
They're short in their class. So amongst the shortest children in their class. So now what happens is that bone health is linked to multiple foods. According to me, milk is a very important source of it. So if a child is playing football and he falls, or any game, and his teeth fall off, he can put the broken tooth in a glass of milk, and it can be transplanted after 6 hours. This is a key indicator of how important milk is for your bones. And now, in our age group, when a person has a fall, has a fracture, the doctors then recommend, okay, get an X-ray, get a DEXA scan. DEXA scan is a bone mineral density scan. Now this scan shows you how dense your bones are. The denser your bones are, the less likely they are to fracture. And we in India are extremely lucky that we can go and get this investigation ourselves, just walk to the nearest lab and a radiologist and ask them for a DEXA scan for bone mineral density. There are 3 important areas which should be covered. One is your spine, second is your forearm, and the third is your femur joint, which is your hip joint. So these 3 indicators, there are different bands in that bone in the DEXA scan, which can indicate whether you are moderately prone to fractures, whether you are high risk fractures. Now moderate fractures is osteopenia, and severe fracture risk is called osteoporosis. Another food item which I find is on a high list of increasing your risk of fractures is caffeine. So tea, coffee consumption, the more it goes up, the higher you're risking your bones. Okay, good. That's something I remember now, because we are so prone to start our day with a cup of black coffee. Yeah, like, which our parents didn't. Yeah. That's why if they have a fall, they won't fracture that easily as much as their children would. All right. Another thing is that lack of exercise, lack of water intake also increases uric acid. This then creates crystals in your joints, which can then put you at a risk for gout. Between your joints, these crystals form, and then they cause a very painful condition, wherein again it can affect your bones. So, according to me, eat a healthy diet, exercise regularly, reduce your intake of caffeine. Cokes are a no-no. I mean, I don't mean Coke as such, but aerated drinks are a no-no. Tea, coffee also one should try to avoid as much as possible, and please drink milk. It's good for you, it's good for your bones. Good, that's sound advice. Tell me, there are a lot of health professionals, some of us do have, gym trainers, and they all, of course, some of them do talk about having, some right direction. So, sorry. Then, the waste product is urea. That urea is, you can have a high protein, healthy protein diet without these protein supplements. In fact, my father-in-law was a very good bodybuilder, and a very close friend of his was Sando. I don't know how many of you remember, who was a very famous bodybuilder. Those times there were no protein shakes. The gladiator times there were no protein shakes. So a natural healthy diet also, you can build your body and muscle, but you don't need to have protein shakes. Perfect, thanks. I think what I'm hearing from both of you is that spoke about the whole bone issue. Is there any second thing that comes out from your interactions as a key issue with people, and therefore which can become a big risk factor? Right. Vitamin D supplement, based on what our reports show, excessive vitamin D is also dangerous and can damage your kidneys. So we have to get investigations done, get your vitamin D levels checked, and take supplements regularly. Abroad, you have milk which is fortified with vitamin D, which is not so in India.
So we need to take a supplement, and it's also not only important for our bones, it's also important for our mental health. It's also, it works in many ways, prevents dementia, Parkinson's, a lot of other brain-related issues too. Either another thing that you come across, when you read about some of these things is about fatty liver, right? The different grades of fatty liver, and is that something to be worried about as well? Very much so. In fact, I've had a lot of patients, not a lot, but quite a few, alarmingly large numbers of patients who had fatty liver. Most people enjoy their drink. Yes. And that is, alcohol can be a very important factor for fatty liver. The second is people enjoy fried food. Now, when you have fried food, and most of the fried food, if you eat it from outside, it is reused oil, because it's the most expensive ingredient in any food item when in the preparation process. So it's reused. That causes trans fat, which can then affect your liver. Lack of exercise also increases the risk of fatty liver. Now, fatty liver doesn't show up sudden. I mean, you don't feel the symptoms. It's happening inside your body, but it's advisable to get an ultrasound of your whole abdomen. That's when you get to know, okay, the liver is enlarged. Then there are different stages of fatty liver. You have normal fatty liver. Yes. Then you have a grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver, grade 3 fatty liver, and then there is cirrhosis of liver. What happens with fatty liver? There can be scar tissue formed on your liver, fibrosis of the liver. That can really affect, and liver is a very major organ. It detoxifies your blood. It acts like a strainer and sends the pure blood to the heart. It also stores a lot of vitamins and minerals. So, to prevent fatty liver, exercise, avoid alcohol. If you do consume alcohol, you must get an ultrasound done of your whole abdomen. If there are any signs of fatty liver, you should quit alcohol, avoid fried food, and also I find some very hilarious replies when I tell patients don't have full cream milk. Yes. फिर दूध से मलाई निकल गई तो उसमें रहा क्या? Yes. So try and have more skim milk. A very important takeaway today regarding oil is how much of oil is consumed in an Indian household. Most women say we don't keep a track of how much is consumed. And if you have homes where there are cooks who are cooking the food, they feel the higher the oil, the better. And you have to consume half a liter of oil per person per month. Okay, that's a good metric. Yeah. And I don't know how many are aware. Can the ladies here or men put their hands up and let me know? How many know how much of oil is consumed every month in their house? So we'll come back to you, ladies, after we've done a bit of, brainstorming with our three gurus. So, Doc, of course, spoke about how he's, done his God. Would you want to really share about a personal success story or any particular theme from the work? Agnenaya supatharaye asman vishwani deva vayunani vidwan juyodhyasmajjuhuranameno bhuishthan namavuktim videma. Om Brahmane Namaha. You would like to hear in English or Hindi or Sanskrit? English.
In fact, most of us join IITs to have a very good leisure life after graduation, right, or a very good package. Now, most of you must have realized those packages or corporates. So the thing is, the pleasure that a rich man derives from his means, maybe car, maybe a very luxurious house, or maybe trips, maybe abroad, etc., or food, or maybe good girls, so on. But I think a king, maybe Elizabeth or some other kings, they are fortunate enough to have all these luxuries with them. So the pleasure of a king on this earth, let us say it is X. Now 100 times this pleasure is the pleasure of these Devas. So there is Devyoni, right? You must have heard about Swarg and all those. So those who go there, their pleasure is 100 times that. But again, 10 times that is the pleasure of Ajana Dev. That means Agni, Indra, all these who are who do not take birth as Dev, that means because of their karma, but because of their previous births. Then 10 times this is the pleasure of those living in Gandharva Lok. You must have Gandharvas, like people say Krishna was a Gandharva. And then 10 times this pleasure is the pleasure of people residing in Prajapati Lok. And then 10 times this is again Tapaha, then Maha, Jana Lokas. And then we have the ultimate Brahma Lok. So the pleasure there is 10 raised power of 7 times X. Imagine. That means now we are striving for pleasures which probably a king can have, or still we do not have those pleasures which a king can have. And then 10 raised power of 7 times that is the pleasure which one gets in Brahmalok. Right? And that is the pleasure that one gets through self-realization. Right? So we are not just mere bodies, we are souls. So one says, oh, have you seen New York? Have you seen that tower at New York? Have you seen the Egypt, those monuments? Then you say, oh yes, I should see them, I should see them. But the point is, have you seen our soul? And we can see it, we can feel it, we can really see it. It's not a myth. And when we see it, we feel that freedom, we feel that joy, we feel that pleasure, which is 7 times the pleasure of the king. And now these pleasures which we derive here, they are maybe for 10 years, 20 years, 30 years, right? So maybe 30 years, 40 years, and now they are gone. Or we cannot enjoy them because of the age. But those pleasures, in Brahmalok or Devlok, they last for crores and arabs of years, millions and billions of years. So now you can imagine the difference between the two. So if we do not strive for that pleasure, then certainly we are fools, aren't we? So thing is, that's a real fact, and we can see, just like we see a mountain, just as we feel very santosh when we visit some mountain, or it's there. Same way, when we feel our soul, oh, it's there, it's a real fact. And that's why all our rishis, they said self-realization is the ultimate goal. It should be our goal. And that's why all kings, they used to renounce their kingly life and go to jungles, vanprasth, and do tapa. Why? For self-realization.
So now what's the way out for self-realization? The shortest and optimum way for self-realization is the Vedic way of life. And that's the most modern also. It's not just old, it's the most modern way of life. And so Manusmriti, basically, Lord Manu gave that lecture to the rishis, right, at the beginning of the creation, that how we can do self-realization or self-realization. So those steps have been laid out in this Manusmriti. Present Manusmriti has been adulterated, so we do not get that. Now this has been purified by me with God's grace, and it's available. Those who want to see what's the real path, shortest and optimum path, you can see here, right? And then, of course, so I can cite a few verses from this which will tell that. In brief, there are some do's and there are some don'ts. Right? So let me just point out those towards those important do's and important don'ts. Yes, that will be very interesting. Right? So the first important do is that in Brahma Muhurta we have to get up, right? And after freshing ourselves or Snan after bathing or cleaning our body and changing the clothes, we have to do Sandhya Vandana, that is meditation, right? We have to do the japa, and that you can do. Best thing is place for japa is forest. One should go to the forest, and so when we are very close to the nature, we feel very close to ourselves also. So when should we wake up? Right, it's a Brahma Muhurta, that means 3 hours before sunrise. 3 to 5. 3 hours before sunrise starts Brahma Muhurta. Nowadays it is 7:15 sunrise, that means by 4 we should get up. But in the summer, if the sunrise at 5:15 or 5:30, then by 3:30 we can get up. So best place is the jungle, and if jungle is not available, we can go to nearest park or nursery, sit under a tree, right? And if that is also not available, then home is the best place. There we can do that, have a nice room which is meant for meditation only, and surrounding scenes are like that, so you feel meditative. And similarly in the evenings, after sunset, before the full glimpse of the stars, that's the time for Sandhya Vandana. So half an hour in the evening. So at least half an hour in the morning, half an hour in the evening. So that accumulates, just like attendance accumulates, and if we fall short of attendance, we fail, right? So attend this, right? So slowly your, punya gets accumulated, and you get the habit of meditation. And once you start that, and the best thing is to do jap, and jap is that of Om, Pranav. That is the best, that's the personal name of the Almighty God. So that we have to do in the morning as well as in the evening. That's first requirement. Now about the don'ts. First thing is we should not take liquor. Liquor is very, very bad. Even a sip of that is bad as per our literature. It's patak, that means it will take us to Narak. So at most, if you are addicted to liquor, take beer. You don't have beer, right? That's also yes, that's allowed. So in the universities also, in the campus they can consume beer but not liquor. Similarly, in Shattat Brahman also it comes in Ashwamedh Yag, something like that is drunk. So those who cannot, like they say, we are Kshatriyas, okay, but don't take liquor, you can have beer. There's also no concentration here. But not always, sometimes. मंगला जी ये पापी है सारे. So that's why I have personally come here that I want my colleagues to raise their standards and reach that Almighty. That's why I come. I want you to go to Swar, right? Second point is adultery.
we call it Part3 gaman. So adultery is very, very bad. One should avoid it at all costs, because that's the worst thing that a man can do. So that means the other man's wife should be like your sister or mother or something like that. But you should never look at others' wife with a different dృష్టికోణం. That's very, very important. That's also Mahapatak, that will land into Mahanarak. So, the modern day prisons, they can keep the prisoner for 10 years, 15 years or lifetime, which is maybe 50 years. But there, the prison in Mahanarak is for thousands of years. And you'll be surprised though there are trees which have cutting, leaves are like swords. So they cut people, and he cries, and it's really tremendous. So avoid these things which will land us to Narak. And third thing is Garbhatya, that abortion. Of course, you have crossed that age, but you can guide your children, right? Abortion is very, very bad. You can kill 10 people. Still, this sin is not equivalent to the sin that we commit during abortion, because that's very, very bad. Treated as per the Vedas, abortion will land you to Mahanarak straight away. So avoid these three things, and do this Sandhyavandanam. And there are other also do's and don'ts. Of course, this Manusmriti is available, though it's in Sanskrit, but you can always get translated or listen to some person. And similarly, this Valmiki Ramayana is basically a real picture of this Manusmriti, that means in practice. So, like when Lord Ram is going, I will just recite that shloka. Vishwamitra is telling Ram, he has taken those Ram and Lakshman, with him to kill Tataka and to save for the yajna. So on the way, after killing Tataka, they go to sleep. So they are they wake up late, slightly late. So Vishwamitra is telling, Kausalya supraja Rama purva sandhya pravartate uttishta narshardula kartavyam daivam ahanikam. So, hey, the king, son of a king or Narshardul, please get up and do Sandhyavandanam, right? So even Ram did that. Vishwamitra is praying, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, right? He's telling him. So this is very, very important. Sandhyavandanam pratah kale, sayam kale, right? And then similarly in Manusmriti, I'll just recite this shloka and then pass it on to. So this is Grihastashram Prakaranam. Brahme muhurte buddhyeta dharmarthau chanuchintayet kaya kleshanscha tanmulan ved tattvartham evacha उत्थाय आवश्यकम कृत्वा कृत शौचः समाहितः पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत् स्वकाले च परां चिरम्. So basically it means one has to get up in ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और पहले अपना धर्म अर्थ का चिंतन, थोड़ा सा चिंतन करें. शरीर का कोई कष्ट आती हो उसके चिंतन करें, कैसे उसका निवारण होगा. और कुछ वेद में अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको आप ऐसे उठकर एकदम थोड़ा सा ध्यान सा करना है. उसके बाद आप अपना कृत शौचा अपना शुद्धि करके और समाहित होकर पूर्व संध्या को करें और इसी प्रकार से सायंकाल को करना है. और इससे हमारी आयु जो आप अपने न्यूट्रिशियस और इन सब का सुना है उसमें अपने आप आपको दिव्य प्रेरणाएं मिलती हैं सविता देव से कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है. हमारा नजर कैसा हो जिससे कि ये सब हम कर सकें. सेल्फ रियलाइजेशन का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें. तो ये जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें ये निःशुल्क आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल्य यही कि आपको पढ़ना होगा इसको. और इन तीनों भाषाओं में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश. और उसके बाद माइनर और मेजर होगा इसके ऊपर. आपने देखा है, हम सबने पढ़ा है और हम लोग उसको रिसाइट कर सकते हैं. बट सही माने में ये बताएंगे कि कौन सी पंक्तियां हैं जो कि
सबसे ज़्यादा give us the maximum benefit और जिससे कि हम ज़्यादा और शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था इसको 16वीं शताब्दी के अंदर। तो इसके अंदर 3 तो दोहे हैं, शुरुआत में 3 दोहे से स्टार्ट होता है, बीच में 40 छंद या चौपाई है 4 लाइन के, लास्ट में 1 दोहा आता है। शुरू के जो दोहे हैं उसके अंदर गुरु की स्तुति है और श्री रामचंद्र जी का गुणगान केवल पहले दोहे के अंदर है। उसके अलावा बाकी जितने दोहे हैं उसके अंदर हनुमान जी की महिमा का, उनकी स्तुति का, उनका गुणगान किया गया। करने के लिए मेरे को हिंदी के भी भावार्थ देखने पड़े और हिंदी से इंग्लिश के भी देखने पड़े, क्योंकि हिंदी से उर्दू में जाने का देयर इज नो डायरेक्ट जो डिक्शनरी वगैरह जो भी है इतना अच्छा नहीं होता। फर्स्ट यू हैव टू गो टू इंग्लिश टू उर्दू, दूसरे दिस इज द वन रीजन। और सेकंड रीजन उर्दू के बारे में मिसकंसेप्शन है, मतलब इंडियन के साथ दिस फॉरेन लैंग्वेज, दिस इज नॉट फॉरेन लैंग्वेज, दिस इज 100% इंडियन लैंग्वेज उर्दू। जब मुस्लिम्स आए थे 13th सेंचुरी में, तो एट दैट टाइम हिंदी एंड उर्दू बोथ वाज बोर्न एट दैट टाइम, बोर्न एंड बॉट अप साइमल्टेनियसली। इसका पता लग जाता है व्हाट इज द पावर ऑफ द उर्दू। तो जबर न बन जेर हो जा, आगे पेश होना है। जबर जेर पेश ये मात्राएं होती है, पेश तो छोटी की मात्रा के लिए उर्दू में लगाते हैं, पेश ऊ के लिए लगाते हैं। तो जबर न हो तो डोंट फील यू आर ग्रेट, जबर न हो, जेर हो जा मतलब बी हम्बल पोलाइट, छोटा हो जा, आगे पेश होना, बिकॉज यू हैव टू अपीयर बिफोर द अलमाइटी गॉड। तो इस तरह से ये उर्दू की कहानी स्टार्ट हुई। इसके अंदर इसके एक्चुअली हनुमान चालीसा का क्या है इसमें, एक तो विल पावर है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, दिस इज 100% ट्रू। मैं तो देख लिया ऑलमोस्ट 58 ईयर्स हो गया, नाउ आई एम 66, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, 1-2 साल से मेरे को इसका मीनिंग भी पता लग गया था। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ता है मेरे ख्याल नेवर गो इनटू डिप्रेशन में कभी नहीं होता। टेंशन भी होता है, डिप्रेशन होता है, तो हल्का फुल्का ही होके रह जाता है आदमी, ऑलवेज स्ट्रीमलाइन रहती है उसके लिए, विल पावर अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है इसके अंदर, और नेगेटिव थिंकिंग आदमी के अंदर कभी नहीं आएगी, दिस इज ट्रू। और सुकून में रहता है, ऑलवेज इन पीस ऑफ द माइंड, और बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ। दिस इज माय एक्सपीरियंस। पर इसके लिए कंडीशन क्या है, इसमें हनुमान चालीसा के अंदर ये बुक है, तो इसमें मैं 4-5 जो चौपाई जो मुख्य है उनका मैं मीनिंग आपको जैसे एक्सप्लेन, मतलब उनका बहुत असर है, तो वो आपको बता। थोड़ा बता दीजिए, रिपीट जस्ट थोड़ा संक्षेप में, सो दैट यस ओनली टेक ओनली 2-3 मिनट्स। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुल सुधारी। तो मतलब मोहतरम मौलिम की जर गुलो कदम, जर डस्ट को बोलते हैं, गुलो कदम मतलब कमल रूपी फीट, लोटस फीट। मोहतरम मौलिम इज द गुरु, मतलब मोहतरम श्री गुरु। ताज दिल का तजगिया करके, ताज दिल बोलते हैं कि मिरर ऑफ ओन इमेज माइंड, तजकिया बोलते हैं इसको क्लीन करके। मोहतरम मौलिम की जर गुलो कदम से ताज दिल का तजकिया करके मैं मुअज्जद रकबा की अजमत पाकीज़गी का बयां करता हूँ। अजमत बोलते हैं ग्लोरी का, पाकीज़गी प्योरिटी होते हैं, बयां करता हूँ। जो चारों शमर हयात बख्शने वाला है। 4 फल होते हैं जीवन के, आप पता ना, एक तो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब मीन्स है, माशियत इसको बोलते हैं अर्थ से, इकोनॉमी से, और सेवत कामत, और मगफिरत इसको मोक्ष। तो इन 2 लाइनों के अंदर उन्होंने गुरु का वर्णन किया है, श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। बाकी के जितने भी आगे के जो आएंगे चौपाई में हनुमान जी के गुणों का गुणगान है और उन्हीं की स्तुति की गई है। और इसमें 2 चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनके बारे में बताऊंगा सीधा। एक तो 26 नंबर के, संकट ते हनुमान छड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। मतलब हनुमान जी संकट से तभी छुड़ा सकते हैं, मतलब आप उससे जुड़ जाए, मतलब एक तरह से जो शख्स तसव्वुर मतलब मन से, थॉट से, वर्ड से, डीड से, मतलब इनके साथ मतलब ध्यान करेगा, तब उनका क्या होगा, आपके हमनशी है, उन्हें आप गहरों से निजात दिलाते हैं। तब आपकी जो भी क्राइसिस है, सफरिंग है, तो ही विल रेस्क्यू फ्रॉम दैट।
जानकी माता ने हनुमान जी को 2 बूंद दिया था, वरदान दिए थे, मतलब अष्ट सिद्धि, मतलब अष्ट सिद्धि का मतलब स्पिरिचुअल पावर। हनुमान जी के पास स्पिरिचुअल पावर थी, छोटा बन सकते थे, बड़ा बन सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, किसी मन की स्थिति जा सकते थे। और नौ निधि का मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पावर, इसमें पैसा और जो भी दूसरी चीज़ है, ये चीज़ है कि आप रूहानी फेज में स्पिरिचुअल पावर और दैनिक खजानों से नवाजने वाले हो, और आपके ये सलाहियत माता जानकी ने बख्शी है। और लास्ट के अंदर हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के दिल में वास करते थे, उनके दिल में निवास करते थे राम सीता। I won't telling you, you go and do it. You will experience it. Okay? This much time is enough for me. Please close your eyes very softly, very gently. Hands off. Feet comfortably placed. As if you are sleeping while sitting. Pray to the Almighty, thanking Him that He has given us this opportunity to be with Him who is within you inside, in your heart. I want to have all my processes. We do not attend to the thoughts. They are like skies in the clouds in the sky, let them go. Unwanted guests in my house, they are waiting outside. I am focused on my job. I am having a didar face to face, feeling with Him in my heart. If your mind distracts, remind your using your willpower that I am doing prana ahuti dhyan, heartfulness meditation on my heart, and continue. Observe yourself constantly, be aware, don't sleep. When I say that's all, dhyan समाप्त कीजिए, don't open your eyes suddenly. You have prepared for this moment for many years, maybe thousands of years. This moment is very, very precious for us. We are praying to Him, crying in our hearts to have a meeting with Him. After that's all, don't open your eyes. Just withdraw your attention from that divine light in your heart, and then observe yourself inside how you are feeling. Then open your eyes slowly, then, and don't focus somewhere. Just see in the air. Be in that thought of meditation only. So, I think we are out of time. This is the way to do meditation. This is done, as he said, before sunrise. Every day for 1 hour. We do for 1 hour every day. I have been doing it for the last 27 years. Not a single day I know that I have missed it. I talked of 5 C's: contentment, calmness, courage, compassion, and this is my assurance. You do half an hour cleaning in the evening, I will help every one of you, any number of people in the world. It's because we want to see every one of you at the 50th. Guys, so go for it and stay healthy. एक्सेप्शन है यहाँ पे होते हैं, तो होने देते हैं। ज्ञान लेके आए, वेदों में इतनी
काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जो आज सत्य साबित हो रही हैं, बट उनका कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब नहीं था। बस सफोकेटेड नहीं होता सही। I think we should play a game. Sorry guys, play. No, sir. अच्छा हाँ बढ़िया यार। शाम को यहाँ पे बॉम्बे में पहली पोस्टिंग हुई थी मुझे। अभी तो क्लास बीटेक वाले हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, इनके पास to stop the balls from going here and there. एज कम्पेयर ऑफ टीटी, क्योंकि टीटी में फिर उतना मतलब नहीं लगता इसको कि लोगों को मतलब बैडमिंटन ज़्यादा पसंद आता है। एक इधर sorry. तो ये Hi friends, my name is Anil Chopra and I am from the 1980 batch of IIT, as you can see from my badge, and we are having our Ruby reunion for these 3 days. I'm so glad to be here, back to our roots, back to where we spent 5 years together, back to where we made men out of boys, and I'm happy to bond with the old friends definitely. I'm equally happy to see the new campus and the new infrastructure. Many of us have been coming here sometimes, but many of us have also not come since the last 40-45 years, and it's a very welcome change. The sheer size and scale and the quality of infrastructure, it has impressed me. We have been to the lecture hall complex, where we have seen the large number of halls, the large size of the lecture rooms, as well as the modern capacities over there. And now we are at the sports complex. The playgrounds are always there before, but this complex is new, which has been added, and all sorts of facilities, indoor sports, whether it is badminton, squash, table tennis. So I think this is second to none. And what you are seeing behind us is the trophies that we have all won, many of them at the 2019 Inter-IIT event. So that talks about the type of emphasis that IIT is putting not just on academics or studies, but also on extracurricular. I wish all the best to IIT Delhi and all the people associated. Thank you. It has been a great feeling coming for the Ruby reunion after 40 years and meeting so many classmates and their spouses. Since this morning we have had several sessions and they have all gone very well, and our friend Mr. Sanjeev Chopra has maintained the timeline very, very well. I really appreciate the efforts made by IIT Alumni Association for this great occasion, and I thank all my friends whom I have met after so many years. Truly well done. Thank you. Thank you. पार्टीशन और इस तरह कुछ बच्चों के लिए दास्तानें भी लिखी, और उसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक दास्तान पेश कर रहे हैं जो है विजय राम देथा जी की कहानी पर बेस्ड दास्ताने चोगोली। इजाजत है? तो हाजरीन लीजिए पेश है। अच्छा, एक जरूरी चीज कि अगर कहानी में आपको कोई चीज पसंद आए तो आप 2 लफ्ज से उसको बयान कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, वो है वाह। और अगर बाई चांस कोई चीज़ आपको कोई समझ में ना आए या पसंद ना आए तो वक्त की नज़ाकत यही कहती है कि आप खामोश रहें और क्योंकि अगर वो वाह गलत जगह लग जाएगा तो आप उनके हमारे दिलों में लगेंगे। जरा सोच समझ कर वाह एक बार कह के दिखाइए जरा। वाह वाह वाह। मैं कह रहा था आज गला खराब है, शो अच्छा हो गया। चलिए, तो आप लोगों का साथ ऐसे ही बने रहे। शुरू करते हैं
तो हाज़रीन लीजिए पेश है दास्तान चौबोली। तो हाज़रीन जैसे कि रिवायत है कि दास्तान शुरू रखी है तो हम आपको सुनाएंगे हम्द यानी ऊपर वाले को याद करना। तो करो पहले तौहीदे यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जान, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, और उस बिन तो कोई किसी का नहीं, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। तो हाज़रीन गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे ताकि चौबोली की ये कहानी बारंबार सुनाई जाती रहे और हर युग और हर दौर और हर खत्ते और हर मुल्क और हर जबान और हर मकान और हर मकाम और हर आसमान तले इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पैदा होते रहे। तो हाज़रीन कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत बड़े ठाकुर साहब से कि जिनका बहुत बड़ा ठिकाना था, कि जिनकी बहुत बड़ी हुकूमत थी। उनके तीर अंदाजी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे। वो अपनी तीर अंदाजी की मशक कुछ इस तरह से करते थे कि रोज सवेरे सवेरे रात मानकर अपनी ठकुराइन का हाथ पकड़ते, छत पे ले जाते, 108 कदम पीछे आते, कमान को कान तक खींच का तीर जो छोड़ते तो तीर जन जन दन दन करता हुआ सीधे ठकुराइन की नक के आर पार हो जाता। एक नहीं दो नहीं पूरे 108 तीर ठकुराइन की नक की आर पार हो जाते। हर तीर के साथ ठकुराइन अपनी मौत को आते और गुजरते देखा। एक भी तीर इधर से उधर हुआ नहीं कि ठकुराइन का काम तमाम हुआ। ठकुराइन ये देखकर दिन पे दिन घुलती जाती यहाँ तक के सूख के काटा हो गई, गोरा रंग झुलस कर काला पड़ गया, दाना पानी जिस्म को लगना बंद हो गया। हर वक्त तीरों की आवाजें जन जन दन दन कानों पे पड़ती रहती। अजय हमें क्या बुरा था मरना अगर रोज होता, लेकिन रोज रोज का 108 मार का मरना कौन बर्दाश्त कर सकता है भाई। और ऐसे बात नहीं हाजरीन कि ठकुराइन साहब ने अपनी बात ठाकुर साहब तक नहीं पहुंचाई, लेकिन ठाकुर साहब का कद इतना बुलंद और बाला था कि उनके कान तक बात पहुंच नहीं पाती थी। और अगर एक आध बार पहुंच भी जाती तो बमक के कहते क्या बात करती हो, रोज की मश्क छोड़ दे वो भी तुम्हारे कहने पर। हाँ अरे वो मर्द क्या जो औरत के कहने में आ जाए, अरे वो मर्द नहीं मायों के बैगन का भरता है। इस पर ठकुराइन साहब कहती कि मैं आपकी अदना से गुलाम हूँ, मैं आपके मश्क के काबिल कहाँ। तो ठाकुर साहब बमक के कहते भाई जब हम इतनी बड़ी रियासत के ठिकाने के मालिक हैं तो फिर तुम अदना कैसे हो सकती हो। और अपनी बात पर ठहाके लगाकर हंसते रहते। अब बेचारी ठकुराइन साहब दिन रात कोने में दुख की जार जार रोया करती। अब आखिर क्या करे, आखिर उन्होंने 7 अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे तो पति की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। लेकिन हुआ कुछ यूं हाजरीन कि एक दिन ठिकाने के मैनेजर की भतीजी ठकुराइन साहब से मिलने आई। अब जब ठकुराइन साहब का उसने चेहरा देखा तो बोली हाय हाय जी गोरा झुलस के काला पड़ गया है, बताओ तो सही हुआ क्या है। हाँ सूख के कांटा हो गई हो। अब पहले तो ठकुराइन साहब ने सोचा कि बात को अनसुनी कर दे, नजरअंदाज कर दे, लेकिन भतीजी का इसरार बरकरार रहा। अरे तुम बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है। हाँ मुझसे कुछ पूछो तो सही, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया, कुछ बोलो तो सही। आखिरकार ठकुराइन साहब ने अपनी नस से 108 तीर निकालने की रुदात सुना दी। अब तो भतीजी ने ये सुना तो बोली भाई जी, अरे अगर मेरा शौहर मेरी नस से 108 तीर निकाले ना तो मैं उसे अपने घोड़े का चारा खिलाऊं, अपने पाँव का धोवन पानी पिलवाऊं और मुश्किल कसा के मसरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाऊं। हाँ साहब ये बात ठकुराइन साहब के सीने में तीर की तरह लग गई। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि ये बात ठाकुर साहब के सामने कहे। आप तो जानते हैं बड़े लोगों की औरतों का एक ही काम होता है, घूंघट काट के चुपचाप मर्दन के पीछे चलना। तो हाजरीन एक दिन हुआ यूं कि पूस का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। ठाकुर साहब रंग महल में दाखिल हुए। इत्तेफाक से पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आबोताब से जलवागर हो रहा था। ठाकुर साहब ने चांद को देखा, हर तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखा। हर तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखकर उनके मन में एक मासूम सा ख्याल पौंधा कि हाय
अगर इस चांदनी रात में ठकुराइन की नस से तीर निकाला जाए तो अब जब ख्याल आ ही गया तो ठहरना कैसे, लपकते ठकुराइन के पास गए, अपने दिल का ख्याल जाहिर किया। वो ठकुराइन जो लिहाफ में दुबकी थी वो और अंदर घुस गई। उनकी आनाकानी देखकर ठाकुर साहब कहने लगे, क्या बात करती हो, अरे हमारे निशाना कभी चूका है जो तुम इस तरह से बर्ताव कर रही हो। ठकुराइन ने मन में सोचा कि हाँ ठीक है, दिन की रोशनी में तो आपका निशाना कभी नहीं चूकता है। अरे पर ये तो रात है, अरे माना कि चांदनी रात है पर है तो रात ही ना। वो चांदनी रात क्या इसलिए होती कि नस से तीर निकाले जाए? चांदनी रात तो होती ही नजरें नजरों से मिले, दिल का शिकार करे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, एक चमेली के मड़वे तले दो बदन चांदनी रात में जल गए। और ये मर्दुआ चांदनी रात का इस्तेमाल नस से तीर निकालने के लिए करना चाहते हैं। एकदम से बिफर कर बोली, मेरी मानो ना तो तुम रोज अपना निशाना चूक जाते हो, किसी दिन तुम्हारा तीर मेरे जिगर के आर पार हो तो अपनी मंजिल को पहुंचू। इस पर ठाकुर सा लाल पी लोगों कहने, क्या बात करती, अरे क्या बुजदिली दिखा रही हो, अरे राजपुतानी का दूध पिया कि नहीं, चलो अभी हमारे साथ छत पर। हाथ खींच तो छत पे ले गए, 108 कदम पीछे आए, वो कमान कुकान तक खींच कर जो तीर छोड़ा, जन जन दन दन करता हुआ तीर नथ के आर पार हो गया। हाजरीन, एक नहीं दो नहीं, पूरे 108 तीर उस चांदनी रात में ठकुराइन के नथ के आर पार हो गए। उस आसमान में जितने चांद सितारे थे सब ठकुराइन साहब की बदकिस्मती का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन साहब, आखिर मन का भार कोई कब तक सहन कर सकता है? एक ना एक दिन तो मन का भार हल्का करना ही होता है, मन की बात कहनी ही होती है। तो ठकुराइन साहब से भी रहा ना गया और एक दिन उन्होंने अपनी बात ठाकुर साहब के सामने रखी दी। ये सुनते हो, वो ठिकाने के मैनेजर की भतीजी आई थी। वो कह रही थी कि अगर मेरा शौहर मेरी नस से 108 तीर निकाले तो मैं उसे अपने घोड़े का चारा खिलाऊं, अपने पाँव का धोन पानी पिलवाऊं, मुश्किल कसा के मसरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाऊं। हाँ, मैं नहीं, वो कह रही थी। साहब, ठाकुर साहब ने ये सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी इस मासूम सी हरकत को कोई इतना बुरा मान सकता है। फौरन बिस्तर से लपक के खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ है वो बदकम्मा शौहरत, हम अभी जाएंगे, उससे ब्याह करके यहाँ लाएंगे और उसकी नस से 108 नहीं 208 तीर निकाल कर दिखाएंगे। अब साहब, जब दिल में ख्याल आ ही गया तो फिर देर किस बात की। फौरन घोड़े पर सवार हुए 4 मुसाहिबों को साथ लिया और टकबक 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 करते हुए ठिकाने के मैनेजर की कोठी पर पहुंच गए। अगर ठिकाने के मैनेजर को पता चला कि आधी रात को ठिकाने के मालिक अन्नदाता उनके घर की चौखट पर आए तो पत्ती की तरह लड़क से वो हाथ जोड़ के बाहर निकलेगा, हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई। और पहले तो ठाकुर साहब ने किसी बात को कोई जवाब न दिया, गुस्से में चहलकदमी करते रहे। फिर एक मुसाहिब ने मैनेजर के कंधे पर हाथ रखा और उसे किनारे ले जाकर भतीजी की सारी रुदास सुनाई। अब जो उसने रुदास सुनी तो उनका चेहरा फक रह गया। फौरन भतीजी को तलब किया और कहा, अरे पागल ही हो गई है, हाँ बड़ों के ऐसे उलझुल बातें करती है, चल माफी मांग। तो भतीजी कहने लगी, सही तो है, इसमें गलत क्या, आप मेरा ब्याह आज अभी इनसे करा के दिखा दीजिए, मैं अपनी बात सच करके दिखा दूंगी। हाँ, अरे सारे खानदान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबने हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर हाजरीन, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो छोटों की गलतियों को माफ कर दे, ऐसी दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है। तो मैनेजर ने कहा कि माई बाप 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, इसके माँ बाप से पूछ कर बताता हूँ, यात्रा में गए हैं। तब तो ठाकुर सा लाल पीले को, अरे क्या बात करते हो, हम इस ठिकाने के क्या लगते हैं, माई बाप लगते हैं, हम तुम्हारे क्या लगते हैं, माई बाप लगते हैं, हम इस लड़की क्या लगते हैं, माई बाप लगते हैं। जब हम बाप होते हुए कह रहे हैं कि हमारी शादी इससे कर दो तो तुम बीच में पढ़ने वाले कौन हो? साहब, पंडित आया। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये थी कि लड़की को शादी से कोई एतराज ना था। तो साहब पंडित आया, फेरे हुए, जैसे ही 7वां फेरा खत्म हुआ, ठाकुर साहब ने उस नई नवेली का दुल्हन का हाथ पकड़ा, घोड़े पे बिठाया, टकपक करते अपनी हवेली पे पहुंचे। अभी चांदनी रात खत्म होने में थोड़ी सी देर बाकी थी और ठाकुर साहब चांदनी रात को जाया नहीं करना चाहते थे। तो वहीं छत पे लाके खड़ा किया, और हाँ अब बताता हूँ, तेरी नस से 208 तीर निकाल के दिखाता हूँ। अब वो जो नई नवेली दुल्हन थी एकदम से खिलखिला के हंस पड़ी। अब वो जो हंसी तो ठाकुर साहब को समझ में नहीं आया कि देखे तो देखे किधर कैसी बावली लड़की हंसती है। तो उसने कहा कि ठाकुर साहब आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपकी नस से 508 तीर निकाल के दिखाती हूँ, मेरे बाएं हाथ का काम है। अब तो ठाकुर साहब को लगा कि ये मेरी रोज की मश्क है, मेरे तीरंदाजी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर है, जिसका मजाक उड़ाती है। फिर उन्होंने सोचा, हाँ ठीक है, अभी खड़े होकर दिखाता हूँ। ठाकुर साहब के मन में एक शंका का बीज पैदा हुआ, पूछ कर बदला लेने के लिए मेरी गर्दन की तरफ तीर डाल दिए तो नहीं, हम मर्द हैं, हम राजपूत हैं, हमारा काम है तीर चलाना, तो अपनी जगह पे खड़े हो। तो उस पर नई नवेली दुल्हन यानी मैनेजर की भतीजी ने कहा कि ठाकुर साहब अगर कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो तो जाओ शहजादी चौबोली की शर्त पूरी करके आओ।
शहजादी चौबोली की शर्त है कि जो मर्द उसे एक रात में 4 बार बुलवाएगा उसी से वो शादी करेगी, और अगर वो उम्मीदवार नाकामयाब हुआ तो तहखाने में उखड़ू बैठकर घोड़े का चारा पीसेगा। 17 गुणे 20 धाकड़ नौजवान एक से एक शहजादी राजकुमारी चौबोली का हाथ जीतने गए और कोई कामयाब ना हो पाया। तुम जाओ वो काम करके आ, तुमको जियाला सूरमा राजपूत मानूंगी। अब साहब ये बात तो ठाकुर साहब की राजपुतानी शान पर पट्टा लगने वाली बात थी कि पड़ोसी नगर में इतनी बड़ी चुनौती और उन्हें कानों कान खबर नहीं। फौरन तीर कमान फेंका और काल करे सो आज का राज करे सो अब में आस्था रखने वाले ठाकुर साहब ने कहा घोड़ा तैयार करो, हम अभी जाएंगे। साहब घोड़ा तैयार किया गया, जरी बख्तर पहनकर, कोट पहनकर, खंजर कटार छुरी तलवार से लैस होकर जैसे शादी करने नहीं किसी जंग पर जा रहे हो, घोड़े पर सवार हुए टकबक करते हुए चौबोली के नगर की तरफ निकल गए और जाते जाते मुसाहिबों से कह गए 7 दिन बाद चौबोली का हाथ जीतकर इसी रास्ते से वापस लौटूंगा। जब तुम धूल का मरगला उठते देखना समझ जाना हम आ रहे हैं, हमारे इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देना। इस पर मुसाहिबों ने कहा मरहबा मरहबा हुजूर, आप जैसा तीरंदाज तो इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। अजी करण अर्जुन भी आपके सामने पानी भरते हैं, क्या उन्होंने द्रौपदी की नस से कभी 108 तीर निकाले थे? अरे हमें पूरा यकीन है कि आप विजय होकर लौटेंगे। ये सुनकर ठाकुर साहब ने अपनी मूंछों को ताव दिया, घोड़े पर एड़ लगाई और टकबक करते हुए चौबोली के नगर की ओर निकल पड़े। तो साहब ठाकुर साहब वहां से निकले, चौबोली के नगर पहुंचे, सराय में डेरा किया, पीताम्बरी धोती पहनी, पीताम्बरी कुर्ता पहना, 1.5 हाथ का साफा पहना, तलवार हाथ में नहीं, जूतियां पहनी और वहीं नगाड़े पे चोट देने के लिए पहुंचे। साहब वहां महल में 2 बड़े-बड़े नगाड़े रखे थे उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए, लेकिन नगाड़े तो बहुतों ने बजाए थे। वो जितने शहजादे राजकुमारी चौबोली का हाथ जीतने आए थे वो सब तहखानों में उखड़ू बैठकर घोड़े का चारा पीस रहे थे। उस तहखाने में इतने नौजवान जमा हो गए तो इतना चारा पिस चुका था कि कोई मुफ्त में ही लेने को तैयार नहीं था। लेकिन साहब इस बार उम्मीद थी कि कोई जियाला आया जो राजकुमारी चौबोली को हाथ जीत कर ही जाएगा। खैर शाम हुई, चौबदार आया, ठाकुर साहब को बड़े अदब और एहतराम से उस बारादरी में ले गया जहां राजकुमारी चौबोली विराजमान थी। ठाकुर साहब आकर के चलते हुए, मूंछों को ताव देते हुए जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि जरदोजी के पर्दे लटके हैं, हर तरफ पील जोत के दिए जलते हैं, मुरब्बा और जवाहर की मसहरी बिछी है, उसके ऊपर मुकाए नूर का आलम दिखाती राजकुमारी चौबोली बैठी है। ठाकुर साहब ने जैसी नजर उठा के देखा, श्वाए तनवीर हुस्न की चमक से नजर हीरा हुई, जी सनसना गया, करीब था कि गश खा के बेहोश हो जाए कि तलवार के सहारे अपने आप को संभाला और एक टक जो चौबोली को देखते रहे तो रात भर देखते ही रह गए। साहब सुबह हुई तो चौबदार आया, उनका कंधा शाना हिलाया, तब उन्हें सारी दुनिया समझ में आई। बमके चमके कहने लगे, अरे क्या बात करते हो, 108 तीर निकालता हूँ नस से, एक रात में 4 बार बुलवाना कोई बड़ी बात है, आप एक मौका तो दीजिए। तो साहब चौबदार कहाँ सुनने वाला था, सटका मार के सीधा उन्हें तहखाने ले गया, 4 बोरी चारा उठ के सामने पटका और कहा कि पीसो, हैं पीसो। साहब उस तहखाने में जितने कैदी उम्मीदवार थे सब ठाकुर साहब की हालत का मजाक उड़ा रहे थे। हाजरीन सच है कि इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, आप ढूंढने निकलिए एक और मिलते हैं 1000। अब उधर ठाकुर साहब के ठिकाने पर जितने लोग उनका इंतजार कर रहे थे 7 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, वो धूल का मरगला तो छोड़िए जर्रा तक उड़ता नजर नहीं आया। हाँ 10वें दिन ये खबर आई कि जिस आन बान शान से ठाकुर साहब चौबोली का हाथ जीतने गए थे और उन्हें बुलवाने गए थे उनकी खुद की बोलती बंद हो गई है, उकड़ू बैठे तहखाने में घोड़े का चारा पीस रहे हैं। और हाँ खबर ये भी आई है कि चारा पीसने में वो महारत हासिल नहीं है जो तीरंदाजी में थी, लेकिन इतना चारा और इतना वक्त है कि एक ना एक दिन इसमें भी महारत हासिल कर लेंगे। तो साहब उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर छोटी ठकुराइन ने बड़ी ठकुराइन से कहा कि अच्छा जीजी मैं तीर्थ यात्रा को जाती हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। ये कहकर वहां से निकली, चौबोली के नगर पहुंची, सराय में डेरा किया। छोटी ठकुराइन ने मर्दाना लिबास जेब किया, नकली मूछ लगाई, कानों में कुंडल पहने, 1.5 हाथ का साफा पहना, पीताम्बरी धोती पहनी, पीताम्बरी कुर्ता पहना, ठाकुर साहब की तलवार ली और वहीं नगाड़े पे चोप देने के लिए पहुंची। अभी वहां नगाड़े पे चोप दे भी न पाई थी कि वहां पहरेदार ने उसका रास्ता रोका और कहा कहाँ जाता है, घर से लड़कर आया क्या? बस 17 गुणे 20 एक से धाकड़ नौजवान राजकुमार आए, चौबोली का हाथ ना जीत पाए, और तेरे अभी दूध के दांत टूटे नहीं, चला है चौबोली की चेदी करूंगे, चौबोली की चेदी करूं, तो भाग यहाँ से। छोटी ठकुराइन ने इसका कोई जवाब न दिया, सीधे नगाड़े पे चोप लगा।
साहब ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। तो साहब एक ऐसा कम से नौजवान शहजादी चौबोली का हाथ जीतने आया है कि जिसकी अभी मसें भी नहीं भीगी हैं। ओहो, उसकी जिंदगी का सूरज अभी उगा भी ना था कि डूबना चाहता है। खैर साहब, शाम हुई, चौकीदार आया, छोटी ठकुराइन को बड़े अदब और एहतराम से उसकी बारादरी में ले गया जहाँ राजकुमारी चौबोली विराजमान थी। छोटी ठकुराइन जैसी उस कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वही जरदोजी के पर्दे लटके हैं, हर तरफ पील जोत के दिए जलते हैं, मुरब्बा और जवाहर की मसहरी बिछी है और उसके ऊपर मुकाए नूर का आलम दिखाती राजकुमारी चौबोली चुनरी और अपने हार के साथ बैठी है। छोटी ठकुराइन ने जैसे ही चौबोली की तरफ देखा, वो खुद उस पर फिदा हो गई। कहे हैं कि ऐसे हुस्न पर ऐसी प्रतिज्ञा देती है। इस हुस्न के दीदार के लिए आदमी बरसों कैद खाने की काल कोठरी में भी रहे तो सस्ता सौदा है। तो साहब वो नौजवान किस्सा को यानी अपनी छोटी ठुकराइन उस मसरी के सामने आकर बैठी जहाँ चौबोली जलवा फरोज थी और अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखकर बमक के कहा कि मैं किस्सा गो हूँ और किस्से कहानियां सुनाना मेरा काम है। तो भाई चौबोली अब तो ना कहेगी, ना हाँ कहेगी और ना ही मेरी किसी बात का जवाब देगी। तो अब जो मैं कहानी किस्सा सुनाने जा रहा हूँ उस पर हुंकारा कौन भरेगा, क्योंकि हुंकारा बिन कहानी जैसे नमक बिन खाना, शक्कर बिन शरबत और शीरा बिन शीरनी। तो साहब वो मसरी जिस पर चौबोली विराजमान थी उसने कहा मैं हुंकारा भरूंगी। तो हाज़रीन, जब हुंकारा भरने का मसला तय हुआ, उस नौजवान किस्सा को यानी अपनी छोटी ठकुराइन ने अपना पहला किस्सा बयान करना शुरू किया कि गुलगुना कशाने आरिज़ शाहिद बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम के एक ज्ञानी, गुरु ज्ञानी, महाज्ञानी, भीषण ज्ञानी गुरु हुआ करते थे और उनका एक आज्ञाकारी चेला था। तो एक दिन गुरु ने चेले से कहा, बस इस दुनिया में एक से एक अजीब और अजूबे नायाब आदमी हैं, बस इंतखाब की नजर चाहिए। ये जो दूर से तमतमाता, चमचमाता, अपना परचम लहराता नजर आता है, उसके करीब जाओ और टटोलो तो खोखला नजर आता है, और वही जो दिखने में साधारण है उसके करीब जाओ तो अजूबा। अब चेले ने सोचा कि ये रोज मार के अनाप शनाप बकते रहते हैं कि देखे आखिर इनकी बात में कितनी सच्चाई है। साहब चेले ने ये तय किया और आश्रम से निकल पड़ा। अब विधि का विधान देखिए कि अभी 4-5 कोस ही चला था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा देखा। उसने देखा एक आदमी चुपचाप बैठा आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहा, चुपचाप बैठा टकटकी लगाए देखे जा रहा। अब चेले से रहा ना गया, वो उसके करीब गया था। भाई साहब क्या बात होगी, क्या देख रहे हो आसमान की तरफ? अरे जाओ ना यार, बेरोजगार आदमी, यहाँ कहाँ हूँ, चलो भगो यहाँ से। क्या करे, काम है ही नहीं, सारे ताम धंधे ठंड पड़े हुए हैं, क्या करूँ? सोचा आपके साथ ही थोड़ा सा कर लूँ, बताओ दोनों देख लेंगे। यार एक तीर छोड़ा था आसमान में, 6 महीने को उल्लू को पट्टा नीचे नहीं आया। 6 महीने हुए हैं, 6 महीने पहले छोड़ा था, अभी तक नीचे नहीं आया। हाँ यार, मुझे तो लग रहा है इसरो वालों ने पकड़ लिया है, मंगल ग्रह पहुंच गया। अभी साहब जी इतना बात कर ही रहे थे कि एक दिन जन से आसमान से आया और नीचे चल गए। आप वाला ये? हाँ 150 फीट अंदर के, अब भी निकालता हूँ कम्बा। अब साहब ये कह के जो एक तीर छोड़ा तो जर्र करके 2 तीर निकले और आसमान में चले गए। चेले ने कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मैं तो अभी आश्रम से निकला ही था कि मुझे इतना बड़ा अजूबा नजर आया। उसने उसे सारी रुदास सुनाई और कहा, हुजूर आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर ऐसे और अजूबों की तलाश करते हैं। तो साहब वो दोनों वहां से निकले, दोनों चले जाते थे। एकदम से चेले को प्यास लगी। अब चेले को प्यास लगी तो वो पानी, बावड़ी में पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तो उसमें एक अजीबोगरीब अक्स दिखाई दिया कि पहाड़ी पे एक आदमी पता नहीं क्या चीख रहा, चिल्ला रहा, पागलों ऐसी हरकत कर रहा। अब तो उससे रहा नहीं गया, वो अजूबे को लिया और उसके पास गया और कहा कि भाई साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाल वाली क्या लाल वाली, क्या देख, अरे पीली वाली आगे निकल क्या गई। लाल पीली टैक्सी है क्या? अरे नहीं, अरे देख नहीं रहा, कुछ मुझ में घोड़ों की दौड़ चल रही है। वाह हरी भाई साहब कुछ यहाँ से कितनी दूर होगा? अरे होगा कि 700-800 कुछ। पीली वाली फिर आगे निकल गई। 700-800 कोस तक आप ऐसे ही देख लेते हैं? अरे ये तो कुछ नहीं, मैं तो 1000-2000 देख लूं। अयोध्या में बता दूं क्या हो रहा है अभी, लाइटें लिखा है। क्या हो रहा है?
हाँ, देखो देखो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। 22 जनवरी को मेरे साथ ही आ जाना, मैं लाइट टेलीविजन दिखा दूंगा। महाराज आपको पता नहीं है आप कितने बड़े अजूबे हैं, ऐसी नंगी आंखों से कोई इतनी दूर तक नहीं देख सकता है। हरी हरी वाली जीत गई। अरे जीत जाने दो बड़े भाई, आप बहुत बड़े अजूबे हो। उसको भी सारी रुदास समझाई कि एक अजूबा ये है, एक आप मिल गए और अजूबे की तलाश करते हैं। अब साहब ये करके वहां से आगे बढ़े और क्या देखते हैं कि एक आदमी धौकनी की तरह सांस भर रहा है और जो उसके सामने नदी नाले पर्वत पहाड़ आ रहे हैं वो सब साफ सुथरे होते चले जा रहे हैं और एक साफ सुथरी चिकनी सड़क बनती चली जा रही है। चेहरा उसके करीब गया और कहा, अरे भाई साहब क्या कर रही है? सड़क बना रही है। सड़क इस तरह सांस भर के कहाँ जाएगी? ये तो अपन लक्षद्वीप तक पहुंचा देंगे। लक्षद्वीप, क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात। पता है आप कितने बड़े अजूबे हैं। उसे भी सारी रुदास सुनाई, अपने साथ लिया और आगे बढ़े। और हाजिरीन थोड़ा ही आगे गए थे कि क्या देखते हैं कि एक आदमी हिरणों की तरह कुलाचे मार रहा है और जो हिरण उसे नजर आता उसे पकड़कर उसके गले में घंटी बांध देता। चश्मे ज़दन में 108 हिरणों के गले में घंटी बांधी। चीले से रहा गया, उसके करीब गया, कहा रुक थोड़ा ठहरो सांस ले लो। जरा बताओ कि हिरणों के गले में घंटी काहे बांध रहे हो? वो क्या है, यहाँ से राजा परीक्षित की फौज निकलेगी, वो इन हिरणों को देखेगी, उनका शिकार कर देगी। इसलिए मैं जंगल के सारे हिरणों को पकड़ कर उनके गले में घंटी बांध रहा हूँ कि जिस गले में घंटी होगी उसका शिकार वो नहीं करेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अजूबे ने सोचा, कहा कि अरे मेरी अक्ल मारी गई थी जो मैं अपने गुरु का इम्तिहान लेने के लिए निकल पड़ा। ये कहकर उसने उन चारों अजूबों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपना सर खम किया। तो उन चारों अजूबों को चेले ने लिया और महाराज के दरबार में पहुंचे, उनकी खूब आरती उतारी, खूब खुशामद की। और हाजिरीन आप तो जानते हैं कि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद है मिजाज, जो नहीं करते वो रहते हैं हमेशा मोहताज। खुशामद से आता है मका मुल्क और ताज। यादी तासीर इस नुस्खे ने पाया है रिवाज कि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। तो साहब उनकी आरती उतारी और कहा कि आप लोग तो गुणी ज्ञानी हैं, विलक्षण हैं, अजूबे हैं। अगर आप चारों मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया फतह कर सकते हैं, दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर हाजरीन विडंबना तो यही है, जो असली गुणी ज्ञानी है, जो असली विलक्षण है, जो असली अजूबे हैं, उनको दुनिया फतह करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जो बड़े बड़े लंपट, दुराचारी, अत्याचारी और जो बेवकूफ हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। तो उस चेले ने चारों अजूबों को लिया और महाराज के पास गए और उन चारों को हुनर बताया। कहा कि महाराज आप इन चारों को अपने दरबार में रख लीजिए, कभी ना कभी काम आएंगे और 1-1 लाख रुपया इनको तनख्वाह दीजिए 1 महीने की। अगर 1 रुपया भी कम देंगे तो इनकी भी अवहेलना होगी और आपका भी अपमान होगा। साहब ये कहकर तो वो वहां से निकल गया और महाराज ने उन चारों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। लेकिन उन चारों को कोई काम धाम तो था नहीं जो उनके शान शहान हो, तो दिन भर रोटियां खाते और पलंग तोड़ते। लेकिन हाजिरीन एक दिन एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जिसका हल सिर्फ इन चारों के पास था। हुआ ये हाजिरीन कि उस राज्य के राजपुरोहित बैठे अपना नक्षत्र वगैरह देख रहे थे। देखकर कहा, महाराज महाराज ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति हुई है कि त्रेता युग के बाद ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति ही नहीं होगी। महाराज अगर अभी अभी तुरंत 1.25 घंटे के अंदर अंदर कोई यहाँ से कुछ बुझ जाए 700 कोस दूर और आपके खजाने से वो हीरे जवाहरात लगी जीन ले आए, उसे लाकर घोड़े पर बांधे और उस पर युवराज को बैठाकर उसकी सवारी कराए, तो आप चक्रवर्ती राजा महाराजा अधिराज बन जाएंगे। लेकिन साहब 1.25 घंटे के अंदर कौन यहाँ से 700 कोस दूर कुछ बुझ जाए और जीन लेकर आ जाए? ये तो नहीं हो सकता। अरे नामुमकिन है यार। ये मुश्किल है जी, अकल्पनीय है, कल्पनीय है। अरे घोर गप्पे दिल्ली वालों की उड़ाई हुई। लेकिन साहब ये चक्रवर्ती राजा महाराजा धीराज बनने का नशा मार्शल लॉ लगवाने से ज्यादा होता है। तो महाराज ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, भाई ये समस्या पेश आई है, कौन ऐसा जियाला सूरमा जो 1.25 घंटे के अंदर 700 कोस दूर कुछ बुझ जाएगा और वो जीन ले आएगा? तो इस पर सब दरबारियों ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज देखिए महाराज दरअसल बात ये है कि हमको तो इतनी तनख्वाह ही नहीं मिलती कि हम इतने बड़े बड़े काम करें। आप जिनको 1-1 लाख रुपया महीने का देते हैं, आप ये काम उनसे क्यों नहीं करवाते? हम गरीब को क्यों परेशान कर रहे हैं? महाराज को ये सुझाव पसंद आया। उन्होंने फौरन उन चारों अजूबों को तलब किया। जैसे वो सामने आया कहा कि भाई ये मसला पेश आया। इस पर दौड़ने वाला कहने लगा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1.25 घंटे के अंदर तो मैं 3 बार कुछ बुझ चला जाऊं और वो जीन ले आऊं। इस पर दूरदर्शी कहने लगा, महाराज जीन तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है, उसे देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया रही हैं।
इस पर सड़क बनाने वाला कहने लगा महाराज यहीं से बैठा बैठा धौकनी की तरह सांस भरूंगा, एक साफ सुथरी चिकनी सड़क बन जाएगी, आप चहलकदमी करते हुए चले जाइएगा और जीन लेकर वापस आ जाइएगा। तो तीरंदाज भी बोल उठा, महाराज अगर रास्ते में किसी ने जीन चुराने की कोशिश की तो मैं यहीं से बैठा बैठा उसे हलाक कर दूंगा। अभी हलाक का काम भी खत्म ना हो पाया था तो वो जो भागने वाला भगौड़ा था नजर से गायब हो गया। अब यहाँ से दूरदर्शी ने आंखों देखा, आन बयान किया कि हाँ महाराज निकल गए हैं। अरे महाराज जीन निकालिए, वहां तो कोई चौकीदार भी नहीं खड़े। अरे महाराज जीन निकाल के, उसमें तो ऐसा लग रहा है ऐसे हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सूरज चांद तक दिए। अरे महाराज जीन लेके यहीं आ रहे। अरे महाराज वो तो एक बावली में पानी पीने लगे। अरे महाराज उनको पानी का अफरा लग गया, वो एक पेड़ के पीछे विश्राम करने लगे। महाराज वो उनकी आंख लग गई, महाराज वो तो सो गए। अरे महाराज वहां पे एक सांप आ गया, अगर इस सांप ने उसको डस दिया तो हम सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पर तीरंदाज ने कहा, अरे आप फिक्र छोड़िए, बताइए कहाँ मैं अभी से हलाक कर देता हूँ, बताइए। बड़े भाई आप 2 डिग्री का कोण बनाइए शुमार की तरफ और 1 डिग्री का कोण बनाइए मगरिब की तरफ और आधी डिग्री का कोण बनाकर न्यू करके सीधा मार दीजिए। करके तो तीर छोड़ा, वो तीर जाके सीधा नाक के फन पर लगा, नाक बिफर कर जमीन पर गिरा और गिरते हुए उसकी पूंछ सोते हुए अजूबे के हाथ पे लगी। वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो दरबार में होना चाहिए था। अब ये सोच ही रहा था कि दरबार में हाजिर हो गया। अब दरबार में हाजिर होते वो जीन देख के महाराज बड़ा खुश हुए। रानी ने तारीफी नजरों से राजा की तरफ देखा, राजा ने तारीफी नजरों से रानी की तरफ देखा, दोनों ने तारीफी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। तो रानी ने कहा कि महाराज जरा ये तो बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े अजूबे पाल के रखे हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? अब ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए, सारा दरबारी सोच में पड़ गया, सारा नगर सोच में पड़ गया, सारा ब्रह्मांड सोच में पड़ गया। यहीं पर किस्सा वो ने अपने किस्से को रोका और कहा, बोल रे मेरी मसरी, बता कौन है इन चारों में सबसे बड़ा अजूबा? मसेरी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा अजूबा वो भागने वाला है जो 1.25 घंटे के अंदर जीन लेके आ गया। नहीं भाई, अगर सबसे बड़ा अजूबा कोई है तो वो है सड़क बनाने वाला। ये सड़क बनाने वाला सबसे बड़ा अजूबा कैसे हो गया? अरे भाई अगर सड़क नहीं होती तो वो भागता कहाँ? अरे वो भागने वाला भगौड़ा था, वो तो लोग विदेश भाग जाते हैं, उसमें क्या है? भागने वाला भगौड़ा कहीं भाग जाता है, उसमें क्या है? अरे नहीं, बगैर सड़क के कोई नहीं भाग सकता भाई, इसलिए सड़क। अरे भागने वाला, अरे सड़क बनाने वाला, चौबोली फट पड़ी, कहा बंद करो अपनी बकैती। अरे जाहिर है जिस अजूबे ने सही वक्त पर तीर चलाया वही सबसे बड़ा अजूबा है। अगर वो सही वक्त पर तीर नहीं चलाता तो सबकी मेहनत बेकार जाती कि नहीं? पर साहब उस किस्सा को इस बात मतलब था कि कौन सबसे बड़ा अजूबा? उसने अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, बजाओ नगाड़े, अबोल चबोली पहली बार बोली। अब साहब जो नगाड़े पर चोट पड़ी तो दूर दूर तक उसकी थमक गई। राजा रानी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने उनकी शहजादी को एक बार बुलवा दिया। और कैद खाने में जितने कैदी उम्मीदवार थे उन्हें लगा अभी कोई जियाला सुरमा आया है जो इस कैद खाने से हमें आजादी दिलवाएगा। हाजरीन, सच है कि इस दुनिया में आजादी से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्त जब हम आजाद होंगे तो चांदनी रातों को देखेंगे, अरे फूलों को खिलते देख पाएंगे, फसलों को लहराते देखेंगे, अरे नदी को कलकलाते देख पाएंगे, तितलियों को उड़ते देखेंगे, IIT में एडमिशन कराएंगे, चौबोली की गुलामी से आजादी, इस अंधियारे से आजादी, आजादी आजादी आजादी। हाजरीन, साधु और रसोई में रखी सूंठ, इनकी कोई कदर नहीं होती, ऐसे इन पांचों की उस नगर में कोई कदर नहीं थी। तो इन पांचों ने तय किया कि हम भी अपना परचम शहर में जाकर लहराएंगे। साहब ये तय किया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकल लिए। अब रात हुई तो एक बावली के किनारे उन्होंने डेरा डाला और तय किया कि रात को चोर डाकुओं से बचने के लिए एक एक करके दोस्त पहरे पर बैठेगा। तो साहब 4 दोस्त सो गए, अब बढ़ई जो है पहरे पे खड़ा हो गया। अब वो नींद से बचने के लिए यहाँ वहाँ टहलता रहा। टहलते टहलते उसने क्या दिखा कि सामने एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। अब उसको उठाकर जो सूंघा तो संदल की लकड़ी उसके हाथ में। अब बढ़ई के हाथ में संदल की लकड़ी लगी, उसके हाथ ना खुजला, ऐसा कभी हो सकता है? तो उसने फौरन अपने रिंदारी वगैरह औजार वगैरह निकाला और देखते ही देखते उस बियाबान जंगल में एक औरत का मुजस्समा बनाकर खड़ा कर दिया। अब जब वो सोया तो दर्जी की बारी आई। दर्जी ने देखा कि वाह वाह, दोस्त ने तो बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई है, लेकिन इसके कपड़े नहीं पहने। तो फौरन उसने कपड़े निकाले, उसके चोली घाघरा और चोली बनाकर उसको पहना दिए। जब वो सोया तो उसके बाद सुनार की बारी आई। सुनार ने देखा यार दोस्तों ने क्या अच्छी प्रतिमा बनाई है, लेकिन इसकी तो जेवर पहनी नहीं है। तो उसने सोना वोना निकाला, उसने काल का हाला बाला बिछिया पाना बना के उसको पहना दिया। अब जब वो सोया तो उसके बाद लखारा की बारी आई। लखारा ने देखा कि वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मोहनजोदाड़ो की प्रतिमा आकर खड़ी हो गई है।
लेकिन इसके हाथ खाली हैं। तो उसने लाख के कंगन निकाले और उसकी कंगन बनाए और कोहनी से कलाई तक बना के उसको पहना दिए। अब इसके बाद पंडित की बारी आई। तो साहब पंडित ने देखो, वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा जैसे इंद्र की अप्सरा आकर उतर गई है। इस बुत को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के इसके कदमों में रख दिए। साहब पंडित को एक ऐसा हुनर आता था कि वो बेजान चीजों में जान फूंक सकता था। तो उसने मंत्रोच्चारण किया, हाथ में भभूति अभूति रखी और जैसी फूका तो वो मुजस्समा जुम्बिश करने लगा, यानी वो खूबसूरत औरत बन गई कि वो मुखड़ा जिसे देख मेहदाब खाए, कि वो नक्शा की तस्वीर हैरत आए, जो कुछ चाहिए ठीक नक्शिक से अंग, नजाकत भरा सेवती का सारा, कुछ एक तमकिनत, कुछ एक बाकपन, बहुत अनूठी गरज गरज हर तरह से अनूठी पवन। तो साहब इन पांचों को कामदेव ने सताया और पांचों जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, तलवार निकाल कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई कहता कि मेरी बीवी है, कोई कहता इससे मैं ब्याह करूंगा, कोई कहता कि इसमें मैंने जान फूंकी है। साहब यहीं पर किस्सा वो ने अपने किस्से को रोका और कहा कि बोल रे मेरी चुनरी, बता कौन है इन पांचों में उसका असली शौहर। तो किस्सा तो चुनरी ने कहा कि भाई इन पांचों में उसका असली शौहर वो बढ़ई है जिसने लकड़ी के टुकड़े को काट कर उसे बुत बनाया। चौबोली ने मन में सोचा कि अरे वो जो बढ़ई है वो तो उसकी माँ के बराबर उसको पैदा किया है, तो क्या माँ से बेटी की शादी कर दिया थी? लेकिन वो खामोशी से सब सुनती रही। लेकिन इस पर किस्सा बोलने का नहीं भैया, अगर उसका असली शौहर कोई है तो वो है पंडित जिसने उसमें जान फूकी। हाँ पंडित। चौबोली ने मन में सोचा कि अरे वो पंडित तो उसके बाप के बराबर है, क्या बाप की बेटी से शादी कर दी जाती है? अब वो दोनों लगे अपने दोंदा पहली में, वो बोले पंडित बड़े पंडित बड़े पंडित बड़े पंडित बड़े 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 बंद करो अपनी बकवास। अरे तुम लोग को समाज के बारे में कुछ पता है या नहीं है? ये बात सारा समाज जानता है कि जो दुल्हन को कंगन पहनाता है वही उसका वर होता है। तो दुल्हन को कंगन किसने पहना थी? लखारा ने ना। तो उसका असली वर कौन है? लखारा। साहब किस्सा को इस बात से क्या मतलब था कि कौन उसका असली शौहर, किसने लखारे ने पहना है कंगन या किसने? उसने तो अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा कि बजाओ नगाड़े, अबोल चबोली तीसरी बार बोली। अब साहब नगाड़े पर चोट पड़ी, राजा रानी तो खुशी के मारे जमीन पर लौटने लगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि तीसरी बार बोल पड़ी। और जितने कैदी उम्मीदवार थे हाथ में वो सब अपना सामान बांधने लगे कि भाई जिसने 3 बार बुलवा दिया वो चौथी बार तो बुलवा ही देगा। और उधर ठाकुर सांप जो कोने में बैठे हुए थे उनके सीने पर सांप लौट गया। हाजरीन, जिस उम्मीद से वो चौबोली का हाथ जीतने आए थे, अब उनकी आंखों के सामने नाक के नीचे चौबोली किसी और की हो जाएगी। और अगर यहाँ से वो सही सलामत वापस अपने ठिकाने पहुंच भी गए तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? इससे बेहतर तो यही है यहाँ बैठकर चक्की पीसना 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 और पीसना। तो किस्सा गो ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया, जैसे तरु बिन तरवर, जैसे जिब बिन मुंह, वैसे हुकारा बिन कहानी नहीं। अब और कोई हुकारा बनने को तैयार हो तो मैं ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान सुनाऊं कि जिससे दिलों के खराबे हो रोशन। साहब उस पर वो टिमटिमाता हुआ दिया जो चौबोली के बगल में था, उसने कहा मैं हुंकारा भरूंगा। चौबोली इतनी गुस्सा हुई कि उसने वहीं से फूंक मारा, तो बेचारा बुझ गया। उसमें से धुआं निकला और आवाज आई कि मैं अंधकार हूँ, हमेशा रोशनी के पीछे रहता हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं हुंकारा भरूंगा। लानत है अगर इतने बेहतरीन किस्सा गो को अगर हुंकारा ना मिले, इसलिए मैं हुंकारा भरूंगा। तो हाज़रीन, जब हुंकारा भरने का मसला तय हुआ, उस नौजवान किस्सा गो यानी अपनी छोटी ठकुराई ने अपना चौथा किस्सा बयां करना शुरू किया कि गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक गांव में 2 दोस्त थे, एक जाट और एक राजपूत। दोनों साथ साथ उठते, साथ साथ बैठते, साथ साथ खाते, साथ साथ पीते, साथ साथ चहलकदमी करते, साथ साथ खेती बाती करते, हर काम साथ साथ करते और इस तरह साथ साथ करते कि उन पर जुड़वा भाई होने का शक था। अब हुआ कुछ यूं हाज़रीन कि एक दिन जाट का गौना तय हुआ और उसने तय किया कि वो अपने ससुराल अपने प्रिय दोस्त राजपूत को ही लेकर जाएगा। साहब वो दिन आया, वो अपने दोस्त राजपूत को लेकर अपने ससुराल पहुंचा। अब उसके ससुराल वालों ने उसके राजपूत दोस्त के साथ खूब बर्ताव किया, वो उसकी आवभगत की, लेने देने, उठने बैठने, तोहफे तवाहफ में कि
दूल्हे से ज्यादा राजपूत दोस्त की उसकी खातिरदारी की। अब ये देखकर राजपूत दोस्त को बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ, और उसने भी तय किया कि जब उसका गोना होगा वो अपने दोस्त जाट को ही लेकर अपने ससुराल जाएगा। तो साहब वो दिन आया राजपूत के गोने का, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों गोने के लिए निकल पड़े। लेकिन घुमड़ घुमड़ कर एक बात राजपूत के दिमाग में कौंध रही थी, अगर मेरे ससुराल में वैसा नहीं जैसा मैं चाहता हूँ तो क्या होगा, मेरी दोस्ती कैसी रहेगी, अगर मेरे दोस्त के साथ वो तोहफे तहत मिली, वो इज्जत तौकीर नहीं मिली, तो मैं अपनी आन बान शान का क्या करूंगा, मेरी दोस्ती कैसे रहेगी जाट के साथ। खैर जाट तो जाट था, इन सब बातों से बेनियाज था, वो दोनों चले आते थे कि रास्ते में एक शंकर भगवान का मंदिर मिला। अब राजपूत जो है शंकर भगवान का परम भक्त था, वो उसके इष्ट देव थे, तो उसने अपने दोस्त को कहा तुम जरा रुको, मैं अंदर से पूजा अर्चना करके आता हूँ। तो वो शंकर भगवान के मंदिर में गया और पूजा आराधना करने लगा कि हे महादेव, देवन पते, पार्वती पते, ईश्वरेश, नीलकंठ पंचानंद करण, वामदेव महादेव गंगा शिखर, जटाजूट डमरू डम 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 बाजे सुकरण। हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं, आप अपनी तीसरी आंख से सब देख सकते हैं, आपको तो पता है कि मेरा दोस्त मुझे कितना अजीज है। अगर मेरे ससुराल में वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता हूँ तो 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन भोलेनाथ, अगर जरा भी कुछ अनिष्ट हुआ, जरा भी कुछ ऊंच नीच हुई, तो मैं भी आपका परम भक्त हूँ, यहीं आपके सामने अपने प्राण दे दूंगा। साहब ये कहकर वो मंदिर से निकला, अपने दोस्त को लिया और गोने के लिए निकल पड़े। अब ससुराल वालों ने दोस्त के साथ ऐसी बदतमीजी की, लेने देने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, तोहफे तहत में, अंदर बाहर में, कि उसका दोस्त ना हो के उसका नौकर हो गया। साहब ये देखकर उसका राजपूत का दिल बुझता चला गया। उसे ससुराल वालों पर तो गुस्सा आ ही रहा था, उसे सबसे ज्यादा भोलेनाथ पर गुस्सा आ रहा था। उसने बोला कि अब एक पल भी यहाँ ना रुकूंगा, अभी के अभी गोना कराऊंगा, अपने नगर वापस लौट जाऊंगा। तो साहब उसने रातों रात गोना कराया, अपने दोस्त को लिया, नई नवेली दुल्हन को लिया और अपने नगर के लिए लौट पड़े। अब वहीं शंकर भगवान का मंदिर मिला, तो उसने अपनी बग्घी रोकी और जाके सीधे शंकर भगवान के पास जाके कहने लगा, खुश प्रभात। अरे तुमने अपनी प्रतिज्ञा का मान नहीं किया, कोई बात नहीं, आप भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपका परम भक्त हूँ। मैंने आपके सामने वचन दिया था कि अगर मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो यहीं प्राण दे दूंगा। साहब उसने म्यान से तलवार निकाली, गर्दन पर रखी और छपा, सर एक तरफ धड़ एक तरफ, खून का फवारा छूटा जो जाकर शिव जी के चरणों में विलीन हो गया। अब बाहर जो जाट बहुली में बैठा हुआ था, उसने सोचा काफी देर हो गई, दोस्त ने यहाँ चलकर देखो क्या माजरा है। साहब जैसे मंदिर में दाखिल हुआ, खुदा ऐसा नजारा किसी दुश्मन को ना दिखाए जो इस दोस्त को दिखाया। जब दोस्त की लाश देखी तो सोचा, अरे जब दोस्त ही जिंदा नहीं रहा तो जी कर क्या करूंगा। उसने तलवार उठाए, गर्दन पर लगाई, शक सिर तन से जुदा हुआ, खून का फव्वारा छूटा जो जाकर राजपूत दोस्त के खून में मिल गया। हाजरीन, जीते जी तो एक साथ रहे, मरते वक्त भी एक साथ रहे। अब उधर जो नई नवेली दुल्हन बहुली में बैठी थी, वो सोचने लगी क्या माजरा है, ये दोनों दोस्त आखिर ऐसे क्या गुफ्तगू में लग गए। हाँ, इन्हें कहीं भूल तो नहीं गए कि बाहर नई नवेली दुल्हन बहुली में बैठी है, चलकर देखो कि क्या माजरा है। सब बहुली से उतरी, मंदिर में दाखिल हुई, खुदा ऐसा नजारा किसी राक्षस दिल को न दिखाए तो इस नई नवेली दुल्हन को दिखाया। दो लाश देखी, अपने पति की लाश देखी, कटा हुआ सर देखा, चीख मार कर गश खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो सोचा, अरे अब ससुराल जाकर क्या करेगी, सब यही कहेंगे कल मोही कुलक्षणी खा गई अपने पति को। और जब भगवान शंकर को खून की प्यास लगी गई है तो फिर उसे अधूरा क्यों छोड़ना। सोचकर उसने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पर लगाई और अभी चलाना ही चाहती थी कि तभी माँ पार्वती प्रकट हो गई, बोला रुक जा बेटी रुक जा। वो भोलेनाथ को अयोध्या से निमंत्रण नहीं आया, इसलिए वो रुके। नई नवेली दुल्हन ये न देख पाई थी कि उसने अपने स्वामी का सर जाट के धड़ में लगा दिया। जाट का सर उसने अपने स्वामी के धड़ में लगा दिया। तो यहीं पर उस किस्सा वो ने अपने किस्से को रोका और कहा, बोल मेरे अंधकार, जरा डाल इस पर रोशनी की फुहार कि कौन है उन दोनों में उसका असली वर। उसका असली वर है वो जाट के सर वाला राजपूत धड़, क्योंकि सर जो धड़ जो है सर के मुकाबले 10 गुना होता है, और जिस चीज से आदमी स्वामी कहलाता है वो भी धड़ में ही होता है। इस पर चौबोली फट पड़ी। उसने कहा, तुम बंद करो दोनों अपनी बकवास, तुम्हें कोई शास्त्रों का ज्ञान समझ कुछ है ही नहीं। भाई शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि नदियों में सबसे उत्तम गंगा है,
पेड़ों में सबसे बेहतर कल्प वृक्ष है, पहाड़ों में सबसे अच्छा सुमेर है, और आदमी में सबसे श्रेष्ठ उसका मस्तिष्क है। उसमें 4 इंद्रियां होती हैं। तो जो राजपूत सर वही उसका असली वर। पर साहब उस किस्सा गो को इस बात से क्या मतलब था कि किसका सर और किसका धड़, कौन उसका असली वर? उसने इस बार अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और हवा में लहराते हुए कहा कि बजाओ नगाड़े, अबोल चुबोली एक रात में 4 बार बोली। तो साहब अब जो नगाड़े पर चोट पड़ी है तो 70 कोस तक उसकी धमक गई। राजा रानी को तो यकीन ही नहीं हुआ, वो तो जमीन पर लौटने लगे। उन्हें लगा कि वो तो ब्याह से पहले ही स्वर्ग सिधार जाएंगे। और जितने कैदी उम्मीदवार थे वो सब चौबोली की जय जयकार करने लगे कि जय हो जय हो चौबोली की जय हो जय हो। सच है कि चौबोली की हार हुई है, लेकिन इस हार में भी चौबोली की जीत है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा एकदम सच्ची थी। तो साहब राजा रानी बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़े सोच विचार कर रानी से पूछा कि रानी जरा ये तो बताओ कि आसमान में कितने ताले होंगे? होंगे कोई 9 लाख। तो 9 लाख में सोने की मोहरें गरीब गुरबान बंटवा दूंगा। अब ये सुनकर वित्त मंत्री ने अपना माथा पीटी और कहा, महाराज आखिर चांद सितारों का मोल कौन दे सकता है, मेरी मानिए पीतल की मोहरें बंटवा दीजिए। तो साहब पीतल की मोहरें बंटवाई गई। अक्षत और हल्दी का चावल जो है 70 कोस तक न्योता भेजा गया। लोगों ने 7 दिनों तक खाना खाया और उन कैदी उम्मीदवारों को खूब तोहफे तोहफे देकर विदा किया गया। अब आई सुहागरात की घड़ी। तो छोटी ठकुराइन ने मर्दाना लिबास जेब तन किया, लकड़ी पूछ लगाई, कानों में कुंडल पहनी, ठाकुर साहब की तलवार ली और वहीं जब कमरे में पहुंची तब उसको लगा कि इस राज से पर्दा उठा देना चाहिए। तो चौबोली के पास हो गई, उसने सारा उससे राज खोल दिया कि कैसे उन्होंने ठाकुर साहब से तिल निकलवाने की इज्जत को ख़त्म करा दिया है, कैसे उन्होंने आपके सामने 4 जो शर्त रखी वो बुलवाई और कैसे वो यहाँ आके पहुंची। तो इस पर चौबोली बोली, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरा ब्याह हुआ किससे, तुमसे तो उस ठाकुर से? जी हमारे यहाँ एक रस्म है कि कोई मर्द अगर घर से बाहर चला जाए तो उसकी हाथ में तलवार रख के शादी कर दी जाती है। तो ठाकुर साहब की तलवार मेरे हाथ में थी जब उनकी तुम्हारी शादी हो रही थी। तुम्हारी शादी तो उन्हीं के साथ हुई है। अरे 17 गुणे 20 एक से एक धाकर नौजवान राजकुमार है, मेरा हाथ न जीत पाए और मेरा ब्याह हुआ इस मोटे फुसफुसे खूसट ठाकुर से। जी तुम मुझसे इतनी ज्यादा अक्लमंद हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। जहाँ तक हम औरतों का ताल्लुक है, दुनिया के सारे मर्द एक से हैं। सूरत भले ही सबकी अलग अलग हो, लेकिन सीरत तो सबकी एक ही है। कोई नस से तीर निकाल कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई गहनों से लात ताल कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई नौकरी करवा कर गुलाम बनाना चाहता है, तो कोई दास्तान सुनाकर गुलाम बनाना चाहता है। चाहते तो सब यही है कि हम कोई उनकी गुलाम बनी रहे। तो जी ऐसा है कि मैंने उस ठाकुर से तीर निकलवाने की अजियत को ख़त्म करा दिया है। अब हम दोनों आराम से रहेंगे, इस ठाकुर को जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे, इसको कौवा हकाऊ बना के छत पे खड़ा कर देंगे अपनी हिफाजत की बात। तो साहब कोई ना जान पाया कि उन दोनों औरतों में रात भर क्या बातें होती रही। अब सुबह हुई, बड़े एहतमाम के साथ रुखसती की तैयारी की गई। 70 बहूलियों पर हीरे जवाहरात और जहेज का सामान लदवाया गया। छोटी ठकुराइन ने कहा कि वो जो ठिकाने में मोटे से ठाकुर साहब है ना, उन्हें भी जरा जहेज के सामान में शामिल कर दीजिए। साहब चौकीदार गया, कहा चलो भाई तुम्हारा बुलावा आया, ले जाकर उन्हें जहेज के सामान के साथ शामिल कर दिया। अब साहब काफिला वहां से रवाना हुआ। जब आधा रास्ता तय कर लिया तो छोटी ठकुराइन ने दिल में सोचा कि अब इस राज पर से पर्दा हटा देना चाहिए। तो वो छोटी ठकुराइन बनकर ठाकुर साहब के सामने आई। जैसे ही ठाकुर साहब ने छोटी ठकुराइन को देखा, उनकी धौंकने की तरह सांस चलने लगी, करीब धगश खा के गिर जाए कि तभी छोटी ठकुराइन ने संभाला। अरे रुको, तुम्हें कुछ हो गया तो 3 औरतें विधवा हो जाएंगी। 3 औरतें? हाँ 3 औरतें, एक बड़ी ठकुराइन, दूसरी मैं और तीसरी चौबोली। चौबोली का नाम सुनकर उनकी गाढ़ टपकने लगी। हाँ ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी शर्त पूरी ना करोगे तो मैं चौबोली की शक्ल तो क्या नाखून भी ना देखने दोगी। कौन सी शर्त? हाँ कौन सी शर्त, इतने भोले मत बनो। साहब उनको शर्त याद दिलाई गई, वो फौरन तैयार हो गए। साहब उन्होंने 56 भोग लवाजमा समझकर घोड़े का चारा गप गप खाया, चरना अमृत समझकर पांव का धोवन गट गट पिया और मुश्के कसवाकर
हंसी हंसी दुलत्ती मारते हुए मसरी के 7 चक्कर इर्द गिर्द लगाए और जैसे ही ये प्रतिज्ञा शर्त पूरी हुई, हाथ जोड़कर घुटनों के बल छोटी ठकुराइन के सामने आया, कहा ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरे राजपूतानी शान और मेरे मर्दानी की पट्टा लगेगा। तो साहब ये तीनों लोग अपने नगर वापस आए और जब ये बड़ी ठकुराइन की जो 3 निकलवानी की जो अजियत खत्म हुई तो वो दिन दूनी रात चौगनी फूलने लगी। कुछ ही दिनों में 2 मसहरी की जरूरत पड़ने लगी। तो राजा रानी ने सारा राजपाट ठाकुर साहब चौबोली छोटी ठकुराइन को दिया और सन्यास आश्रम चले गए और दिन रात यही जप करने लगे कि अगले जन्म मुझे चौबोली जैसे बिटिया ही दीजिए। तो साहब ठाकुर साहब ने बड़े दिनों तक राजकाज किया और खूब ज्ञानी तुरानी राजा कहलाए, क्योंकि वो हर काम चौबोली की कुशाग्र बुद्धि और छोटी ठकुराइन की कुशाग्र बुद्धि से ही करते थे। तो हाज़रीन जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी मारूफ और मशहूर लोग हुए हैं, वो सिकंदर वकंदर अरस्तु फरस्तु जितने भी हुए हैं, इन सब के पीछे किसी औरत का ही हाथ रहा। तो हाज़रीन ये 4 बोल, ये 4 सुखन हमने आपको सुनाए, ये 4 बोल, ये 4 सुखन आप औरों को सुनाए, ताकि चौबोली की दास्तान विजय गांधेथा का नाम, जनाब शमशेर रहमान फारूकी का नाम, जनाब महमूद फारूकी का नाम और दास्तान गोई कलेक्टिव का नाम और हमारा काम आगे बढ़ता रहे। क्योंकि हाज़रीन सुखन जो है वही सब कुछ है कि पिला मुझको साकी शराबे सुखन, मफ्तू हो जिससे बाबे सुखन, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है, सुखन के तलबगार हैं अक्लमंद, सुखन से है नामे निकोया बुलंद, सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन संग उसका खरीदार है, सुखन का सिला यार देते रहे, जवाहे सदा मोल लेते रहे, कि रहे जब तलक दास्ताने सुखन, इलाही रहे कदरदाने सुखन, इलाही रहे कदरदाने सुखन, इलाही रहे कदरदाने सुखन। बहुत अच्छा।
हाँ निकालेंगे। Sir, look here. Okay, head down into the light. Oh, that's nice. Sir, आइए आइए. आएंगे आ जाओ Thank you. Look here. कुछ इम्पोर्ट करना था नहीं. Abhinav. Over 10 years. Where were you working? Started with इतना इतना शानदार है कि एक बहुत लंबे समय के बाद एक साथ उस बैठ के काफी सारे दोस्ती का असली दौर वही था। मैं तो एक ही छोटी सी बात कहूंगा कि आजकल
मेला था, मेला ये था नहीं। But what about those who are the beautiful ladies? What are they going to do? कुछ तो डिसाइड किया होगा आप लोग। कैंसिल करिए आपको ये
Thank you.
कि बहुत सारी बात बाकी है और इधर हमारे सर खड़े हैं, इधर बैठे हुए हैं, मतलब ये पूरी महफिल की all of us honor and respect the great hard work that Sanjeev and Renu have put into this. Yay! We love Sanjeev and Renu. We love Sanjeev. Come on up and let's. You know what? We didn't have any prepared gift or anything like that up here, so we can all raise a glass and toast to the great work that you have done to bring us all together. To both of you. Thank you. Thank you. There are a lot of people who worked for this. Yes. I'm trying to just call us. I would say not only worked, our thanks to all of you who've taken the trouble of coming, God alone knows from what corner of the globe, fighting fog, fighting airline, whatever problems, and trains and all those hassles, and still managing to reach. Hats off to you guys. Thank you so much for. Thank you both of them. And guess what? The band. Amazing. And the band has prepared a very special song to honor the two of you right after this. Yeah, there are some things even you don't know.
Shelter's got all his hair and it's still. Hey, Nandu! I promised you? Yes, yes. हम भी लेंगे। ये दोनों जगह बैठ जाती है। मेरे को निकाल दिया, कहती तुमको नहीं। तुम you are awesome personality of this nation, and I say, just love the music.
Thank you so much for requesting for accepting my request. Put your energy at high. Now I will request those all the melodious voice and instrument artists, please take your seat and then again.
Thank you.
अरे कैसे IITM से पढ़ गया पाला। मैं यही पूछने वाला था कि ये 1980 में भी यही बात कर सकता था क्या, जैसे अभी हो रहा है। 1980 में नहीं, 82 में। अच्छा सॉरी, 82 सर, अभी क्या हो रहा है वैसे अभी एक कन्याकुमारी
आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब को कयामत होगी। आज सुबह मेरी गलियों को गिला करती है, मेरे दिल को से शिकायत होगी। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात रातों की बारात ले आए, महंगा का तेरे नाम लाती है, तेरे घर की हर गली तेरे गीत गाती है। मैंने अपने आंगन में ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं तो कहता हूँ